السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن پاک کی ایک بہت اہم اور مبارک سورہ مزمل کے بارے میں، اس کے فضائل، فائدے اور اس سے جڑے وظیفے جو آپ کی زندگی کی مشکلوں کو آسان بنا سکتے ہیں۔ سورہ مزمل قرآن پاک کی 73ویں سورہ ہے۔ اس میں کل 20 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ مزمل کا مطلب ہے کمبل یا چادر اوڑھنے والا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر فرمایا۔ سورہ مزمل کی فضیلت، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ اس سورہ میں تہجد نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے، یعنی رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے یہ سورہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کی لگاتار تلاوت کرتا ہے اس کے دل سے غم دور ہو جاتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سورہ مزمل کے فائدے: نمبر 1، قرض سے نجات۔ اگر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو سورہ مزمل کی تلاوت اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2، دشمنوں سے حفاظت۔ اس سورہ کی تلاوت انسان کو دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ نمبر 3، رزق میں برکت۔ روزانہ سورہ مزمل پڑھنے والا کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا۔ نمبر 4، روحانی سکون۔ دل کی بے چینی اور گھبراہٹ کے لیے یہ سورہ ایک علاج ہے۔ نمبر 5، مراد پوری ہونا۔ جو شخص کسی خاص حاجت کے لیے اسے وظیفے کی طرح پڑھتا ہے اس کی دعا قبول ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ سورہ مزمل کا وظیفہ: اگر آپ کسی خاص پریشانی میں ہیں تو اس طرح وظیفہ کرے۔ سب سے پہلے وضو کر لے، عشاء کی نماز کے بعد اکیلے بیٹھ کر 11 بار درود شریف پڑھے، اس کے بعد سورہ مزمل کو 3 بار پورے توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھے، آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اللہ سے اپنی دعا مانگے۔ یہ عمل 11 دن تک لگاتار کرے، انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہوگی۔ قرض سے چھٹکارا پانے کے لیے: اگر کوئی شخص قرض میں ہو تو وہ سورہ مزمل کو لگاتار 41 دن تک روزانہ 1 بار تلاوت کرے، انشاءاللہ قرض ادا کرنے کا راستہ آسان ہوگا۔ رزق میں برکت کے لیے: فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور حلال روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مصیبت اور پریشانی سے نجات: اگر کوئی بڑی مصیبت یا غم ہو تو 3 دن تک روزانہ 7 بار سورہ مزمل پڑھے، اللہ تعالیٰ رحمت اور مدد فرمائے گا۔ روحانی سکون اور تسلی کے لیے: رات کو سونے سے پہلے سورہ مزمل پڑھنے سے دل کو سکون اور نیند میں راحت ملتی ہے۔ دوستو، صرف وظیفے پڑھنا کافی نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ سورہ مزمل کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ یاد رکھے، اصلی کامیابی تلاوت کے ساتھ اس پر عمل کرنے میں ہے۔ ہر سورہ میں ہر طرح کی مصیبتوں سے بچنے، ان سے لڑنے اور ایک اچھی زندگی جینے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہم لوگ اگر قرآن کو پابندی سے پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی مصیبت یا پریشانی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے۔ قرآن میں موجود ہر سورہ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے اور نیک عمل کرنے کا پیغام دیتی ہے اور ہمیں غلط کام کرنے سے بچاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم پابندی سے نماز اور قرآن کو پڑھیں اور اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگے۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو ہر وہ چیز دے گا جس کی آپ کو چاہت ہے۔ آخر میں ہم یہی بولیں گے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی اور دین پر چلنے کا پابند بنائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی سورہ مزمل کی فضیلت، فائدے اور وظیفے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اسلام کی سب سے مبارک تاریخ 12 ربیع الاول کی۔ یہ وہی دن ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں مسلمانوں پر خاص طور پر نازل ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول کی اہمیت: یہ وہی دن ہے جب رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا پیغام: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش انسانیت کے لیے ہدایت، امن اور رحمت کا پیغام ہے۔ آپ نے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا، جہالت کو علم میں بدل دیا، نفرت کو محبت میں بدل دیا۔ اس لیے 12 ربیع الاول صرف جشن نہیں بلکہ سنتوں کا اپنانے کا دن ہے۔
शुक्र अदा करने का वजीफा। इस दिन सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करे कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। 2 रकात नमाज नफल पढ़े, नमाज के बाद 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे। यह अमल बरकत और रहमत खींच लाता है। दुरूद शरीफ का वजीफा। 12 रबीउल अव्वल का सबसे अहम अमल है दुरूद शरीफ की तिलावत। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। कोशिश करे कम से कम 1000 बार दरूद इब्राहिम पढ़े। रिज्क और बरकत का वजीफा। अगर घर में तंगी या परेशानी हो तो यह अमल करे। फजर की नमाज के बाद 313 बार या वहाब पढ़े। अल्लाह से हलाल रिज्क और बरकत की दुआ करे। गम और परेशानी दूर करने का वजीफा। असर की नमाज के बाद 100 बार या सलाम पढ़े और फिर अपने दिल की परेशानियां अल्लाह के सामने रख दे। इंशाअल्लाह दिल को सुकून मिलेगा और मुश्किलें आसान होगी। तौबा और इस्तिगफार। इस दिन सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। 100 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु इलैहि पढ़े। नियत यही रखे कि आज के बाद गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। दुरूद और सलाम। पूरा दिन दुरूद शरीफ की महक से रोशन करे। कम से कम 1000 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। जहाँ भी बैठे दुरूद पढ़ना जारी रखे। रिज्क की आसानी। अगर कोई बेरोजगारी, तंगी या कर्ज में हो तो यह वजीफा करे। जोहर की नमाज के बाद 41 बार सूरह कुरैश पढ़े। फिर अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह अपने फजल से हमें हलाल और पाक रिज्क अता फरमा। बीमारियों से शिफा। असर के बाद 7 बार सूरह फातिहा और 7 बार सूरह इखलास पढ़कर पानी पर दम करे। वह पानी खुद भी पिए और बीमार को भी पिलाए। इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। तहज्जुद की दुआ। रात को थोड़ी देर उठकर तहज्जुद पढ़े और अल्लाह से यह दुआ करे, या अल्लाह हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक दे, हमारे दिलों को रोशन कर दे और क़यामत के दिन हमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब कर। दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक पैगाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी सुन्नत और उनकी रहमत का पैगाम। आइए इस दिन को सिर्फ रोशनी और सजावट से नहीं बल्कि इबादत, दुआ और नेक अमल से रोशन करे। अल्लाह ताला हमें दुरूद और इस्तिगफार की आदत डालने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो क्या होता है? आज मैं आपको कुरान, हदीस और कुछ किस्सों की रोशनी में दुरूद शरीफ की फजीलत बताऊंगा। कुरान का हुक्म। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। सोचिए, जब अल्लाह और फरिश्ते खुद दुरूद भेज रहे हैं तो अगर हम पढ़े तो हमारे लिए कितनी रहमतें होगी। हदीस की बातें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। क़यामत के दिन सबसे करीब वही होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ेगा। दुआ रुकी रहती है जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ा जाए। सहाबा का सवाल। एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपनी दुआओं का ज्यादा हिस्सा दुरूद पढ़ने में लगा दूं तो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फिर तुम्हारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। एक बुजुर्ग का वाक़या। एक बुजुर्ग हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। लोगों ने पूछा, आप इतना दुरूद क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि जब भी मैं दुरूद पढ़ता हूँ मेरा दिल हल्का हो जाता है, गम दूर हो जाते हैं और रूह को सुकून मिलता है। दुरूद शरीफ के फायदे। दुरूद शरीफ से दिलों की सख्ती दूर होती है। दुआ कबूल होने की राह आसान होती है। घर से गम और परेशानियां दूर होती हैं। रिश्ते दुरूद पढ़ने वालों के लिए दुआ करते हैं। क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब वही होगा जो सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ेगा। खासकर जुमे के दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़े। कोशिश करें कि रोज कम से कम 100 बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़े। अगर आप अपने दिल की दुआओं को पूरा करना चाहते हैं, परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं या रिज्क में बरकत चाहते हैं तो दुरूद शरीफ का वजीफा बहुत असरदार है। वजीफा करने का तरीका। सबसे पहले वुजू कर ले, 2 रकात नमाज नफल अदा करे, फिर 100 बार सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम पढ़े। फिर अपने दिल की दुआ
अल्लाह से करे। हदीस में आता है कि दुरूद सिर्फ दुआओं को अल्लाह के दरबार में पहुंचाने का जरिया है, यानी पहले दुरूद फिर दुआ और आखिर में फिर दुरूद, तो वो दुआ कभी खाली नहीं लौटती। इस वजीफा के फायदे: परेशानियों से निजात, रिज्क और बरकत में इजाफा, गम और तकलीफ से राहत, कब्र की तंगी से नजात, आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होना। दोस्तों, दुरूद शरीफ का वजीफा सिर्फ दुनियावी मसाइल हल करने का जरिया नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी भी दिलाता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने दिन और रात को दुरूद शरीफ की खुशबू से महकाएं। अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ की बरकतों से नवाजे, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और आखिरत में हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब करे। आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कोई शख्स सिर्फ 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसे कितने बड़े इनाम और बरकत अता करता है। नंबर 1, दुआ कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुरूद शरीफ पढ़ो, इससे तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंचती है और कबूल होती है। नंबर 2, गुनाह माफ होते हैं। हदीस में आता है कि जो दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है और नेकियां लिखता है। नंबर 3, रिज्क में बरकत। जो शख्स रोजाना दुरूद शरीफ की आदत डाल ले उसके घर में और माल में बरकत पैदा होती है। नंबर 4, कब्र की रोशनी। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की कब्र रोशन होती है और अजाब से हिफाजत मिलती है। नंबर 5, कयामत के दिन शफाअत। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला होगा। नंबर 6, रहमतें नाजिल होती है। हर बार दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह 10 रहमतें नाजिल करता है, यानी 100 बार पढ़ने पर 1000 रहमतें। नंबर 7, फरिश्तों की दुआ। फरिश्ते उस इंसान के लिए दुआ करते हैं जो दुरूद शरीफ की तिलावत करता है। नंबर 8, दिल को सुकून। दुरूद शरीफ इंसान के दिल से बेचैनी दूर करता है और रूह को सुकून देता है। दोस्तों, देखा आपने सिर्फ 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ने से कितने बड़े बड़े फायदे हासिल होते हैं। तो आइए आज से ही हम रोजाना कम से कम 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल ले। दोस्तों, दुरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को बदलने वाली दवा है। आइए आज से ही इसे अपनी आदत बना ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें 5 वक्त की नमाज अदा करने का हुक्म दिया है और हर नमाज के बाद कुछ अज़कार और वजीफे ऐसे हैं जिनकी बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत संवर सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको असर की नमाज के बाद का एक ऐसा पावरफुल वजीफा बताएंगे जिसे करने से इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलें आसान होगी, रिज्क में बरकत होगी और दिल को सुकून मिलेगा। दोस्तों, असर की नमाज की कुरान और हदीस में बहुत फजीलत बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके अमाल बर्बाद हो गए। असर की नमाज का वक्त अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भरा होता है। इस वक्त में की गई दुआ और अज़कार कबूल होने के ज्यादा चांस रहते हैं। असर के वक्त की अहमियत। असर की नमाज कुरान और हदीस में बहुत अहम नमाज बताई गई है। कुरान में सूरह बकरा आयत 238 में अल्लाह ताला फरमाता है, नमाजों की पाबंदी करो और खास कर दरमियानी नमाज की। और मुफस्सिरीन के मुताबिक दरमियानी नमाज से मुराद असर की नमाज है। हदीस शरीफ में आता है कि असर की नमाज को छोड़ने वाला बहुत बड़ा घाटे में रहता है, यानी असर की नमाज इतनी अहम है कि इसे कभी भी कज़ा नहीं करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं असर की नमाज के बाद का वह वजीफा। असर की नमाज के बाद आप सबसे पहले एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़ ले, उसके बाद 100 बार या रहमानु या रहीम पढ़े, फिर 41 बार सूरह फातिहा पढ़े, आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ करे। दोस्तों, इस वजीफे के फजाइल यह हैं, घर में बरकत होगी, मुश्किलात आसान होगी, बीमारियों से शिफा मिलेगी, दिल को सुकून और तसल्ली मिलेगी, अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे खोल देंगे। असर के बाद के वजीफे। नंबर 1, सूरह इखलास 11 बार। असर की नमाज के बाद सूरह इखलास 11 बार पढ़े। फजीलत। हदीस में आता है कि जिसने सूरह इखलास पढ़ी उसे कुरान के 1/3 पढ़ने का सवाब मिलता है। नंबर 2, अस्तगफार 100 बार। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। इससे गुनाह माफ होते हैं और रिज्क में बरकत होती है। नंबर 3, दुरूद शरीफ 100 बार। असर के बाद दुरूद शरीफ की कसरत करे। हदीस, जो शख्स एक बार दुरूद पढ़ता है उस पर अल्लाह 10 रहमतें नाजिल करता है।
नंबर 4, दुआए कुंजुल अर्श या कोई भी हाजत की दुआ। असर के वक्त दिल से दुआ करना बहुत असरदार होता है। इस वजीफे से दिल में सुकून आता है, घर में रहमत और बरकत उतरती है, गम और परेशानियां दूर होती है, रिज्क हलाल और वसीया होता है। अल्लाह ताला दुआओं को जल्दी कबूल करता है। ए अल्लाह, असर के वक्त की इस बरकत के सदके हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा। आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने की ये सुन्नतें बताई। नंबर 1, खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। नंबर 2, सीधे हाथ से खाना खाया करो। नंबर 3, हमेशा बैठकर ही खाया पिया करो। नंबर 4, छोटे छोटे निवाले धीरे धीरे खाया करो। नंबर 5, उतना ही खाया करो जो आपके सामने रखा हो, मतलब खाने में लालच ना किया करो। नंबर 6, खाने के तुरंत बाद पानी ना पिया करो। नंबर 7, खाना गिर जाए तो उसे उठाकर साफ करके खाया करो। नंबर 8, खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। सुन्नत को आगे शेयर करना सवाब का काम है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी तरफ से मुझे 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। नंबर 1, जब तुम बात करो तो सच बोलो। नंबर 2, वादा करो तो पूरा करो। नंबर 3, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अमानत अदा करो। नंबर 4, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। नंबर 5, अपनी आंखों को नीचे रखो। नंबर 6, अपने हाथों को जुल्म व सितम से रोके रखो। दीन की बातें शेयर करना सदका जारिया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में परेशानी और मुसीबतें आना कोई नई बात नहीं है। कभी रोजगार की तंगी, कभी बीमारियां, कभी घर के झगड़े, हर इंसान इन हालात से गुजरता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कुरान और हदीस में ऐसी दुआएं और वजीफे बताए हैं जो हर परेशानी को आसान कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत असरदार वजीफा बताएंगे। इंशाअल्लाह इससे दिल को सुकून और मुश्किलात से छुटकारा मिलेगा। प्यारे दोस्तों, जब इंसान मुसीबतों और परेशानियों में गिर जाता है तो अक्सर मायूस हो जाता है, लेकिन याद रखिए, मायूसी गुनाह है और उम्मीद ईमान की निशानी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, और एक जगह फरमाया, याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। और एक जगह फरमाया, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज्क देता है जहाँ से वह गुमान भी नहीं करता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई ऐसी दुआएं बताई है जो मुसीबत के वक्त काम आती है। एक मशहूर दुआ है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन काम बनाने वाला है। जब भी आप मुसीबत में हो इस दुआ को बार बार पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अक्सर पढ़ता है तो अल्लाह उसकी 99 परेशानियों को दूर कर देता है, जिनमें सबसे छोटी परेशानी गम और रंज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, अल्लाह उसकी हर तंगी को दूर कर देता है और वहाँ से रिज्क देता है जहाँ से वह गुमान भी नहीं करता। अगर आप किसी बड़ी या छोटी मुसीबत में फंस गए हैं तो ये वजीफा करे। सबसे पहले 2 रकात नमाज नफल हाजत की नियत से पढ़े। नमाज के बाद 11 बार दरूद शरीफ पढ़े। अब 100 बार या फत्ताहु या रजा को पढ़े। अल्लाह का ये 2 नाम बहुत असरदार है, मुश्किलें खोलने वाला और रिज्क देने वाला। उसके बाद सूरह अल अंबिया आयत नंबर 87 पढ़े। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है जो हर मुसीबत में राहत देती है। इसे 313 बार पढ़कर अपनी परेशानी के लिए दुआ करे। आखिर में फिर से 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ करे। यह अमल आप 7 दिन तक लगातार करें। इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलें आसान होगी और दिल को सुकून मिलेगा। मुसीबत और परेशानी से छुटकारे के लिए आप ये वजीफा भी कर सकते हैं। सबसे पहले वुजू करके किसी साफ जगह बैठ जाइए, फिर 7 बार सूरह फातिहा पढ़े, फिर 111 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तूब इलैहि पढ़े। उसके बाद 41 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। आखिर में 7 बार सूरह अलम नशरह पढ़कर दुआ करे। इस अमल को आप 3 दिन तक लगातार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान कर देगा और दिल को सुकून देगा। दोस्तों, दुनिया की हर मुश्किल का हल सिर्फ अल्लाह के पास है। कितने लोग हैं जिन्होंने ये वजीफा किया और उन्हें अपने मसाइल से छुटकारा मिला। आप भी पूरे यकीन और सब्र के साथ अमल करें और साथ ही नमाज की पाबंदी करें। दोस्तों, याद रखें, परेशानी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। जो सब्र करता है अल्लाह उसे बेमिसाल अजर देता है। मुसीबत में कभी हार मत मानिए बल्कि अल्लाह से जुड़ जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फरमाया, सब्र रोशनी है, यानी सब्र करने से इंसान के दिल और दिमाग में रोशनी पैदा होती है। तो दोस्तों ये था परेशानी और मुसीबत का असरदार वजीफा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें ताकि दूसरे परेशान हाल लोगों की भी मदद हो सके। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात आसान फरमाए, आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान की पहली सूरह फातिहा के बारे में, जिसे उम्मुल किताब यानी किताब की माँ कहा जाता है। यह सूरह न सिर्फ नमाज की रूह है बल्कि हमारी जिंदगी की परेशानियों का हल भी है। आज हम इसके फायदे, फजीलत और कुछ खास वजीफों को जानेंगे जिनसे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन होगी। सूरह फातिहा कुरान की पहली सूरह है और इसमें सिर्फ 7 आयतें हैं। इसे शिफा की सूरह भी कहा गया है। हर नमाज की हर रकात में इसे पढ़ना जरूरी है, बिना इसके नमाज अधूरी है। यह सूरह अल्लाह से रहमत, हिदायत और बरकत मांगने का सबसे बेहतरीन जरिया है। सूरह फातिहा की फजीलत। हदीसों और उलमा की किताबों में सूरह फातिहा की कई फजीलतें बताई गई है। नंबर 1, दुआ की कुंजी, यह हर दुआ का निचोड़ है। नंबर 2, रूहानी शिफा, बीमारियों और तकलीफों के लिए बहुत असरदार है। नंबर 3, नमाज का अहम हिस्सा, हर नमाज में इसे पढ़ना फर्ज है। नंबर 4, बरकत और राहत, इसे पढ़ने से दिल को सुकून और घर में बरकत आती है। नंबर 5, दुनियावी परेशानियों का हल, मुश्किल हालात में इसे बार बार पढ़ने से अल्लाह आसानी पैदा करता है। सूरह फातिहा के फायदे। बीमार पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया जाए तो अल्लाह ताला शिफा देता है। सूरह फातिहा को अल्लाह ने शिफा और रहमत बनाया है। हदीस में आता है कि एक सहाबी ने जहरीले डसे हुए शख्स पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो वह बिल्कुल ठीक हो गया, इसलिए इसे सूरह शिफा भी कहा जाता है। अगर कोई इंसान बीमार हो, परेशान हो या किसी तकलीफ में हो तो सूरह फातिहा पढ़कर दुआ करे, इंशाअल्लाह राहत मिलती है। तंगदस्ती और कर्ज की परेशानी में लगातार इसे पढ़ने से रिज्क में बरकत होती है। डरे सहमे इंसान के लिए यह दिल को हिम्मत और तसल्ली देती है। बच्चों और घर वालों पर पढ़कर दम करने से अल्लाह की हिफाजत मिलती है। सूरह फातिहा का वजीफा। रिज्क और बरकत के लिए हर नमाज के बाद 7 बार सूरह फातिहा पढ़े, फिर अल्लाह से अपनी हाजत मांगे। बीमारी और तकलीफ के लिए बीमार पर हाथ रखकर 3 या 7 बार सूरह फातिहा पढ़े और दम करे, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। परेशानी और गम से छुटकारे के लिए रात को सोने से पहले 41 बार सूरह फातिहा पढ़कर दुआ करें, आपकी मुश्किलें आसान होगी। कर्ज से निजात के लिए हर रोज फजर की नमाज के बाद 11 बार सूरह फातिहा पढ़े। पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करे, या गनी या मुगनी मेरे कर्ज को हल्का और आसान कर दे। नियमित अमल से इंशाअल्लाह कर्ज उतरने के रास्ते खुलेंगे। हिफाजत के लिए बच्चों या घर वालों पर 3 बार सूरह फातिहा पढ़कर दम करे, अल्लाह उन्हें हर बुराई, नजर और हादसों से महफूज रखेगा। सूरह फातिहा का पावरफुल वजीफा। बीमारी से शिफा के लिए एक साफ पानी के गिलास पर 7 बार सूरह फातिहा पढ़े। हर बार पढ़कर हल्के से दम करे यानी फूंक मारे, वह पानी मरीज को पिला दे, इंशाअल्लाह शिफा नसीब होगी। रोजी और बरकत के लिए फजर की नमाज के बाद 41 बार सूरह फातिहा पढ़े। अल्लाह से रोजी, रोजगार और बरकत की दुआ करे, अल्लाह ताला गैब से मदद अता फरमाएगा। परेशानी और मुसीबत दूर करने के लिए किसी भी वक्त वुजू की हालत में 70 बार सूरह फातिहा पढ़े, फिर अल्लाह से अपनी परेशानी दूर करने की दुआ करे, इंशाअल्लाह मुश्किल आसान होगी। याद रखे, वजीफा हमेशा ईमान और यकीन के साथ करे। नमाज की पाबंदी और हलाल रोजी जरूरी है, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। दोस्तों, सूरह फातिहा हमें अल्लाह से जोड़ती है, हमारी नमाज की जान है और हमारी दुआओं का निचोड़ है। अगर हम इसे ईमान और यकीन के साथ पढ़े तो यह हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर मददगार साबित होगी। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें सूरह फातिहा की कदर करने और इसे अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तहज्जुद की नमाज का एक ऐसा पावरफुल वजीफा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह के सबसे करीब ले जाती है और यह वह वक्त होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को सबसे ज्यादा सुनता है। तहज्जुद की कुरान से फजीलत। अल्लाह ताला सूरह मुजम्मिल में फरमाते हैं, रात के वक्त थोड़ी देर के लिए उठकर नमाज पढ़ा करो, यह तुम्हारे
तुम्हारे लिए ज्यादा मजबूत और बेहतर है। और बनी इसराइल में फरमाया, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, यह तुम्हारे लिए एक नफल इबादत है। हो सकता है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद यानी सबसे ऊंचा दर्जा पर कायम कर दे। हदीस से फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। एक और हदीस में आया है, रात का आखिरी हिस्सा अल्लाह के सबसे करीब होने का वक्त है। अगर तुम उस वक्त अल्लाह को याद करने वालों में से हो सको तो जरूर रहना। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे रब हर रात आखिरी हिस्से में आसमानी दुनिया पर नाजिल होते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे माफी मांगे मैं उसे माफ कर दूं, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों के सबसे नजदीक रात के आखिरी हिस्से में होता है। उस वक्त जो भी उससे दुआ करता है वह उसकी दुआ को कबूल करता है। तहज्जुद की नमाज न सिर्फ गुनाहों की माफी का जरिया है बल्कि रिज्क, सेहत, कामयाबी और दिल के सुकून को सबसे बड़ा साधन है। तहज्जुद का सही तरीका, ईशा की नमाज के बाद सो जाए, आधी रात के बाद या आखिरी हिस्से में उठकर वुजू करे, कम से कम 2 रकात तहज्जुद पढ़े, चाहे तो 4, 8, 10 या 12 तक पढ़ सकते हैं। नमाज के बाद दुआ करे और अल्लाह से अपने हाजत मांगे। तहज्जुद का पावरफुल वजीफा, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले दुरूद शरीफ 11 बार पढ़े, उसके बाद सूरह फातिहा 7 बार पढ़े, फिर आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़े, उसके बाद या रहमानु या रहीम 100 बार पढ़े, आखिर में फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह से अपनी दुआ मांगे। इंशाअल्लाह यह वजीफा आपकी हर हलाल हाजत के लिए असरदार साबित होगा, चाहे वह रिज्क हो, शादी, बीमारी से शिफा या दिल की परेशानी। तहज्जुद का दूसरा वजीफा, तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात पढ़े, नमाज के बाद 41 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़े, हाथ उठाकर अल्लाह से अपने हर जायज हाजत मांगे। एक सहाबी का वाक़या मिलता है कि वह हर रात तहज्जुद पढ़ते और अल्लाह से दुआ करते। उनकी दुआओं में इतनी ताकत थी कि अल्लाह ताला उनकी हर हाजत को पूरा कर देता। दोस्तों, तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं बल्कि अल्लाह से गुप्त मुलाकात है। खास दुआ तहज्जुद में अल्लाह ताला से तौबा और मगफिरत मांगे। रब्बिगफिरली वरहमनी वहदिनी वआफिनी वरजुकनी। तर्जुमा, ए मेरे रब मुझे माफ कर, रहमत फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे तंदुरुस्ती दे और मुझे रिज्क अता कर। फायदे, दुआ जल्दी कबूल होती है, दिल को सुकून मिलता है, रिज्क में बरकत होती है, परेशानियों और गम से निजात मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं जल्दी कबूल हो तो तहज्जुद की नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए और इस पावरफुल वजीफे को अमल में लाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, औज़ु बिल्लाह एक ऐसी दुआ है जो आम तौर से कुरान पाक की तिलावत से पहले पढ़ी जाती है, क्योंकि ये दुआ जब आप पढ़ लेते हैं तो आप पर शैतान की पकड़ ढीली हो जाती है और आप अल्लाह की पनाह में पहुंच जाते हैं। लेकिन हमको जान लेना चाहिए कि सिर्फ तिलावत के वक्त ही शैतान नहीं आता है, बल्कि इन 4 जगहों पर शैतान का हमला जरूर होता है। तो अगर उन जगहों पर हम शैतान से महफूज नहीं रहे तो नुकसान का खतरा मंडराता रहता है। तो आज हम बताएंगे कि वो कौन सी 4 जगह है जहाँ पर औज़ु बिल्लाह जरूर पढ़ना चाहिए। औज़ु बिल्लाह का मतलब होता है मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से। नंबर 1, कुरान की तिलावत से पहले। कुरान की तिलावत शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना वाजिब है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जब तुम कुरान पढ़ो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो। कुरान के शुरू में ये दुआ इसलिए पढ़ी जाती है ताकि आपका ध्यान न भटके और दिल में शैतानी वसवसे ना आए और अल्लाह का कलाम पूरी तवज्जो से पढ़ा और समझा जा सके। नंबर 2, गुस्सा आने पर। गुस्सा एक इंसानी जज्बा है और ये तब आता है जब कोई बात मिजाज के खिलाफ आती है, लेकिन अगर इस पर काबू ना रखा जाए तो ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और फिर जब गुस्सा उतर जाता है तो उसे एहसास होता है कि ये नहीं होना चाहिए। आमतौर से लोग गुस्से में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, बीवी को तलाक दे देते हैं, लेकिन जब होश में आते हैं तो एहसास होता है कि ये मैंने गलत कर दिया।
اس لیے حدیث میں آتا ہے جب تم غصے میں ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس دعا کے ذریعے شیطان کی بھڑکائی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے جو اس نے دل میں لگائی تھی، اور اس سے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ نمبر 3، برے سپنوں کے بعد کبھی کبھار آپ سوتے ہوئے ایسا سپنا یا خواب دیکھ لیتے ہیں کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو ڈر سا محسوس ہوتا ہے۔ عام طور سے یہ شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو جیسے آنکھ کھلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بائیں طرف ہلکا سا تھوکے صرف اشارے کے طور پر، اور کروٹ بدل کر سو جائے۔ بعد میں اس سپنے کو کسی سے نہ بتائے۔ حدیث میں ہے اگر تم میں سے کسی کو برا خواب آئے تو اللہ سے پناہ مانگے اور وہ سپنا کسی کو نہ بتائے، پھر وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نمبر 4، ڈر یا انجان خطروں کے احساس پر اگر کسی انجان ڈر یا خطرے کا احساس ہو اور کوئی انجانی سی فکر، ڈر یا بے چینی ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور اس کو پڑھ لینے سے دل کو اطمینان ملتا ہے اور اللہ کی حفاظت اور پناہ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ کل ملا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک ایسی دعا ہے جو شیطان سے بچاتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ سے جڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرور پڑھتے رہے، کیونکہ شیطان سے بچے رہنا اور دل میں سکون اور اطمینان کا ہونا اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، فرض نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے یہ 3 کام کرتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کون سے کام؟ تو جان لیجئے یہاں پر بات ہو رہی ہے فرض نماز کے بعد اذکار کی، جو ہر مسلمان کو ہر فرض نماز کے بعد ضرور کرنے چاہیے۔ یہ وہ اعمال اور اذکار ہے جو کرنے میں بس کچھ منٹ ہی لگتے ہیں لیکن ثواب کو دوگنا کر سکتے ہیں، نام اعمال کو باری بنا سکتے ہیں اور پڑھنے والوں کو جنت کے دروازوں تک لے جا سکتے ہیں۔ تو ان اعمال کو صرف کرے ہی نہیں بلکہ ان کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی نیکی پر ابھارے، کیونکہ اگر کوئی اور ان پر عمل کرتا ہے تو آپ کو بھی کرنے والوں کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز کے بعد سب سے پہلے دل سے اللہ کا شکر ادا کرے، یہ احساس دل میں رکھے کہ ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والوں کو ملتا ہے۔ نمبر 1، آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ پہلا اور سب سے اہم کام جو ہمیں ہر فرض نماز کے بعد کرنا ہے وہ ہے آیت الکرسی کی تلاوت۔ یہ آیت سورہ بقرہ میں ہے اور اسے قرآن کی سب سے پاورفل آیت مانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو بس سوچنا کیا ہے، نماز کے بعد رک کر کچھ سیکنڈ میں ہی یہ مقدس آیت پڑھ لیجئے۔ ایک اور بات، اس کی تلاوت سے ہم شیطان اور ہر برائی سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 2، تسبیح فاطمہ پڑھنا۔ اس تسبیح کا نام فاطمہ یا فاطمی اس لیے پڑا کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی جب انہوں نے اپنے دن بھر کی مصروفیت اور اس سے ہونے والی تھکاوٹ کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ وظیفہ بتایا۔ اس تسبیح میں صرف 3 لفظ آتے ہیں جن کو ٹوٹل 100 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ اس تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، الحمدللہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز کے بعد یہ ذکر کرنے سے دل صاف ہوتا ہے، ذہن روشن ہوتا ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 3، کلمہ شہادت پڑھنا۔ تیسرا اور آخری کام جو آپ کو فرض نماز کے بعد کرنا ہے وہ ہے کلمہ شہادت پڑھنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1352 میں ذکر ہے کہ تسبیح فاطمہ اور کلمہ توحید پڑھنے والے
वाले के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समुद्र के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अब गौर करें, इन तीनों तस्बीह को पढ़ने में सिर्फ 3-4 मिनट लगेंगे, लेकिन बदले में आपको मिलता है बेपनाह सवाब, अल्लाह की कुर्बत और जन्नत का वादा, क्योंकि अल्लाह के सामने एक छोटा सा अमल भी बड़े इनाम की वजह बनता है। इसलिए हमें इन अमाल को हर रोज करना, हर नमाज के बाद करना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सूरह अल कारिया की फजीलत और इसके अद्भुत फायदे जानेंगे। अल कारिया का मतलब है बड़ी टक्कर देने वाली, जोर की दस्तक, यानी क़यामत का दिन। सूरह अल कारिया कुरान में 101 नंबर सूरह है, जिसमें 11 आयतें हैं। वैसे तो ये एक छोटी सी सूरह है, लेकिन अगर हम इसका तर्जुमा देखें तो पता चलेगा कि इसमें क़यामत का मंजर पेश किया गया है और बताया गया है कि उस दिन इस दुनिया के साथ और इंसानों के साथ क्या मामला होगा, जिससे इसके पढ़ने वालों को नसीहत हासिल होती है और आखिरत की तैयारी की फिक्र पैदा होती है। और जहाँ तक बात है कि इसके दुनियावी फायदे, तो वो भी बेशुमार है। सूरह अल कारिया की फजीलत और फायदे। नंबर 1, क़यामत की याद। इस सूरह की तिलावत से दिल में आखिरत का खौफ पैदा होता है, इंसान अपने अमाल सुधारने की कोशिश करता है। नंबर 2, हिसाब किताब की तैयारी। सूरह अल कारिया याद दिलाती है कि हर नेक और बुरा अमल तोला जाएगा। तिलावत से गुनाहों से तौबा की प्रेरणा मिलती है। नंबर 3, दिल को सुकून और ईमान की मजबूती। बार बार पढ़ने से दिल को दुनिया की मोहब्बत से हटाकर अल्लाह की याद की तरफ खींचती है। नंबर 4, घर में बरकत। हदीसों में सीधे तौर पर बरकत का जिक्र नहीं, लेकिन कुरान की हर सूरह की तिलावत घर में रहमत लाती है। नंबर 5, मुसीबत में राहत। उलमा के अनुसार जो शख्स परेशान हो वह इसे सुबह शाम पढ़े तो अल्लाह उसे सुकून अता करता है। सूरह अल कारिया के 3 जबरदस्त फायदे। नंबर 1, घर में अगर तकलीफ देने वाले जानवर पैदा हो जाए। अगर घर में तकलीफ देने वाले जानवर जैसे कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू और कॉकरोच पैदा हो जाए तो एक प्याला ले और उसमें पानी डाले, फिर नमक मिक्स कर दे। उसके बाद शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ के साथ सूरह अल कारिया को 11 बार पढ़कर उसमें फूंक दे और फिर घर के कोनों में छिड़क दे और खेत में उगी फसलों में छिड़क दे तो इंशाअल्लाह कीड़ा नहीं लगेगा। नंबर 2, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने के लिए। घर में मियाँ बीवी लड़ते और झगड़ते हैं और हाल ये है कि अच्छी खासी जिंदगी गुजर गई, बच्चे बड़े हो गए, तलाक हो नहीं सकती, बस इसी तरह सब्र करना है। तो अब अगर इनमें मोहब्बत और उल्फत पैदा करना चाहते हैं तो इसके लिए इस सूरह में बड़ा असर है। बस आपको करना यह है कि इस सूरह को 107 बार पढ़े, फिर खाने पीने की चीजों पर दम करके दोनों मियाँ बीवी को खिला दे। अगर नहीं खिला सकते तो पानी पर दम करके पौधों पर डाले और उनकी मोहब्बत की दुआ कर ले। बस एक ही बार के अमल से इंशाअल्लाह उनके अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस वजीफे को 2 या 3 लोग मिलकर भी कर सकते हैं। नंबर 3, कोई मामला अटका हुआ है या कोई जरूरत पेश हो। अगर कोई मामला अटका हुआ है, हल नहीं हो रहा है या कोई जरूरत पेश है तो रोजाना मगरिब के बाद बैठकर इस सूरत को 41 बार पढ़े, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़े और 41 दिन तक ये अमल करता रहे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उस मुश्किल से अल्लाह ताला निकाल देंगे। पढ़ने का तरीका। वुजू के साथ कुरान की तिलावत करें। बेहतर है कि आप इसे हर नमाज के बाद या कम से कम रोजाना 1 बार पढ़े, तर्जुमा भी समझे ताकि दिल पर असर पड़े। दोस्तों, इस सूरह को सिर्फ पढ़ना नहीं, इसके पैगाम पर अमल करना जरूरी है। नेक कामों का वजन बढ़ाने के लिए नमाज, रोजा, ज़कात, सदका और अच्छे अखलाक अपनाएं। दोस्तों, सूरह अल कारिया हमें आखिरत की याद दिलाती है। आइए आज से ही हम अपने अमाल सुधारें और रोजाना इसकी तिलावत को आदत बनाएं। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, खासकर मुसलमानों के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नमाज की। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि इसके कई ऐसे फायदे हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पहला फायदा, मानसिक शांति और तनाव से राहत। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव एक आम समस्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमाज इसमें आपकी
मदद कर सकती है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम दुनिया की सारी फिक्रों को छोड़कर अल्लाह से जुड़ जाते हैं। इस दौरान हम जो सजदा करते हैं वह हमारे दिमाग से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने में मदद करता है। वैज्ञानिक रिसर्च भी कहती है कि सजदा करने से हमारे दिमाग में खून का बहाव बढ़ता है, जिससे हमें सुकून और शांति महसूस होती है। दूसरा फायदा, शारीरिक स्वास्थ्य। नमाज सिर्फ रूहानी तौर पर ही नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी फायदेमंद है। नमाज में की जाने वाली अलग अलग हरकतें जैसे रुकू और सजदा एक तरह की एक्सरसाइज है। रुकू यह हमारी कमर और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। सजदा इससे हमारे जोड़ों में लचीलापन आता है। कयाम यानी खड़े होना, इससे हमारी बॉडी का बैलेंस सही रहता है। तीसरा फायदा, अनुशासन और समय का पाबंद होना। नमाज हमें अनुशासन सिखाती है। दिन में 5 बार तय वक्त पर नमाज पढ़ने से हम समय की कदर करना सीखते हैं। यह आदत हमें रोजाना के दूसरे कामों में भी टाइम मैनेजमेंट करने में मदद करती है। चौथा फायदा, सामाजिक और भाईचारा। जब हम मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो इससे मुसलमानों में एकता और भाईचारा बढ़ता है। सब एक साथ एक ही कतार में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। अमीर और गरीब के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब अल्लाह के सामने बराबर हैं। पांचवा फायदा, बुराइयों से दूरी। नमाज हमें बुराइयों से दूर रहने की सीख देती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। जब हम अल्लाह से जुड़ते हैं तो हमारा दिल नेक कामों की तरफ झुकने लगता है और हम खुद ब खुद गलत कामों से दूर होते जाते हैं। नमाज दीन का सुतून है। नमाज मोमिन का नूर है। नमाज अफजल जिहाद है। जन्नत की कुंजी नमाज है। जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला के और उस आदमी के बीच के पर्दे हट जाते हैं। नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन में है। जमीन के जिस हिस्से पर नमाज के जरिए अल्लाह को याद किया जाता है वो हिस्सा जमीन के दूसरे टुकड़ों पर फख्र करता है। मुसलमान जब तक 5 नमाजों को फिक्र के साथ अदा करता रहता है, शैतान उससे डरता रहता है और जब वो नमाजों में कोताही करने लगता है तो शैतान उस पर दिलेर हो जाता है। सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाती है। जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमा लेते हैं। जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई न देखे तो उसको जहन्नम की आग से आजाद होने का परवाना मिल जाता है। जो 500 नमाजों का एहतमाम करता है और रुकू, सजदे, वुजू वगैरह को खूब अच्छी तरह से पूरा करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोजख उस पर हराम हो जाती है। जो शख्स सुबह को नमाज के लिए जाता है तो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है और जो बाजार को जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटा ली जाती है। अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम कर दिया है। अल्लाह ताला को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज्यादा पसंद यह है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखे। अल्लाह ताला के साथ आदमी को सबसे ज्यादा कुर्बत सजदे की हालत में होती है। नमाजी शहंशाह का दरवाजा खटखटाता है और कायदा है कि जो दरवाजा खटखटाता ही रहे वो खुलता ही है। नमाज दिल का नूर है। जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे नमाज के जरिए बना ले। तो दोस्तों, नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है बल्कि एक मुकम्मल तरीका है जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वह रूहानी तौर पर हो, जिस्मानी तौर पर हो या समाजी तौर पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक ऐसे खास और पावरफुल वजीफा के बारे में बात करेंगे जिसे फजर की नमाज के बाद करने से आपकी जिंदगी में एक इंकलाब आ सकता है। अगर आप रिज्क की तंगी, परेशानियों और बीमारियों से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वजीफा इतना असरदार है कि अल्लाह की रहमतें आप पर बरसने लगेगी और आपकी हर जायज हाजत
हाजत पूरी होगी। तो आइए बिना देर किए जानते हैं इस मुबारक वजीफा के बारे में। फजर की नमाज की अहमियत। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने पांचों नमाजों को फर्ज किया है, लेकिन फजर की नमाज की फजीलत और अहमियत बहुत ज्यादा है। सुबह का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत नाजिल फरमाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और सुबह की नमाज का कुरान, बेशक सुबह की नमाज में फरिश्ते हाजिर होते हैं। फजर का वक्त रात और दिन के मिलन का है, जब अल्लाह ताला अपने बंदों को खास रहमत बख्शते हैं। हदीस के मुताबिक जो शख्स फजर की नमाज जमात से अदा करता है, वो पूरी रात की इबादत का सवाब पाता है। यह नमाज रोजी में बरकत, दिल को सुकून और गुनाहों से हिफाजत का जरिया है। इससे जाहिर है कि फजर की नमाज के बाद का वक्त कितना कीमती है। जो मुसलमान इस वक्त को जिक्र और अज़कार में गुजारता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में कामयाब करता है। वजीफा का तरीका और फायदे। तो अब हम उस पावरफुल वजीफा के बारे में जानते हैं। यह वजीफा नमाज फजर के बाद अपनी जगह पर बैठे हुए करना है। वजीफा करने का तरीका। सबसे पहले नमाज खत्म होने के बाद वहीं पर बैठे रहे जहां आपने नमाज अदा की है। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े। आप कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी सबसे बेहतर है। इसके बाद या वाहिदू का 111 बार विर्द करे। या वाहिदू अल्लाह ताला के नामों में से एक है, जिसका मतलब है अकेला या एक ही। फिर 111 बार अल्लाहुस्समद का विर्द करे। अल्लाहुस्समद का मतलब है अल्लाह बेनियाज है, या अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज हैं। इसके बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद का 3 बार विर्द करे। आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े। यह सब करने के बाद अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से अपनी परेशानियों को दूर करने, रिज्क में बरकत और हर जायज हाजत को पूरा करने की दुआ करे। इस वजीफा के फायदे। रिज्क में बरकत। जो शख्स इस वजीफा को यकीन के साथ करता है, अल्लाह ताला उसके रिज्क के दरवाजे खोल देता है। परेशानियों का खात्मा। बड़ी से बड़ी परेशानी भी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाती है। दुआओं की कबूलियत। इस वक्त की गई दुआएं बहुत जल्द कबूल होती है। रोग और बीमारियों से शिफा। अगर आप बीमार हैं तो अल्लाह इस वजीफा की बरकत से आपको शिफा देगा। इस वजीफा को करते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है। सबसे अहम बात है यकीन। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखे कि वह आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। यह वजीफा रोजाना करे, एक भी दिन नागा ना करे। पाक साफ हालत में रहे और दिल में अल्लाह की अजमत रखे। किसी भी वक्त जल्दबाजी न करे और आराम से वजीफा पूरा करे। यह वजीफा सिर्फ दुनियावी फायदों के लिए नहीं, बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए भी है। फजर की नमाज के बाद का वजीफा। पहला, नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़े। यह जिक्र पूरे दिन के लिए ताकत और सुकून देता है। दूसरा, 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़े, हिफाजत के लिए बेहतरीन है। तीसरा, जो खास दुआ दिल में हो उसे अल्लाह से मांगे। सुबह का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। इस वजीफे को करते वक्त नियत करे कि दिन भर हलाल रोजी, सेहत, ईमान की मजबूती और गुनाहों से बचाव मिले। याद रखे, नियत साफ होनी चाहिए और दिल अल्लाह की रहमत पर यकीन रखे। तो दोस्तों, हमने देखा कि फजर की नमाज के बाद यह वजीफा कितना फायदेमंद है। इसे अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बना ले और अल्लाह की रहमतों का मुशाहिदा करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करे। अल्लाह ताला हम सबको दिन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप रोजी रोटी की तंगी से परेशान हैं? क्या आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और इस तंगी की वजह से आप अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी रोजाना की कमाई में बरकत चाहते हैं, एक खुशहाल और हंसता बसता घर चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर मौजूद हैं और आपको आज रिज्क और रोजी का इतना बेहतरीन वजीफा मालूम हो जाएगा, जिस पर अमल करने के बाद इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकिलाब आ जाएगा और आपके घर की हालत पहले जैसी नहीं रहेगी, बल्कि उसमें बरकत और खुशहाली का बसेरा हो जाएगा। दोस्तों, मैं आमतौर से बुजुर्गों के बताए वज़ाइफ और दुआएं सुनता रहता हूँ और पढ़ता भी रहता हूँ। तो ये वजीफा जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने कई बुजुर्गों और आलिमों को बताते हुए सुना कि उन्होंने इसको अपने उस्ताद से सुना है और इसका तजुर्बा करने पर बड़े फायदे हासिल हुए हैं। एक शख्स का वाक्य है कि उसने 1000 के नोट कभी नहीं गिने थे,
क्योंकि कभी एक साथ इतने पैसे आए ही नहीं थे। तो उसे जब ये वजीफा बताया गया और उसने इस पर अमल शुरू कर दिया। आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि 1000 तो छोड़ो वो लाखों भी गिनने लगा। और ये कोई नई बात नहीं है कि किसी एक के साथ ही ऐसा हुआ, बल्कि इस तरह से कई लोग दुआओं और वजीफों से अपनी हलाल कमाई में बरकत हासिल करते हैं। और कुरानी दुआओं का असर उन पर वैसे ही पड़ता है जैसे सहाबा की जिंदगी में था। कुछ लोगों को दुआओं और वजीफों से फायदा मिल जाता है और कुछ को नहीं। दोनों में फर्क यकीन का है। एक शख्स है जो यकीन के साथ इन दुआओं को अल्लाह के सामने करता रहा, चाहे कुछ दिनों तक फायदा मिला हो या ना मिला हो, वो लगा रहा। दूसरा शख्स है जो बहुत जल्दबाज है, जिसने कुछ दिनों तक तो अमल किया, लेकिन फायदा न दिखने पर उसने अमल को छोड़ दिया और मायूस हो गया। तो अब आप खुद फैसला कीजिए कि कौन है जो सही तौर पर बरकत का हकदार है और किसे अल्लाह की रहमत मिलना चाहिए। वो जो चंद दिनों में ही थक गया और दुआएं जैसी मजदूरी के तौर पर पड़ रहा था कि शाम तक मजदूरी न मिली तो अगले दिन काम ही करने नहीं आया, या वो जो दुआ के पढ़ने पर पाबंद हो गया इस यकीन के साथ कि अल्लाह हमारे साथ है और अगर दुआ कबूल होने में देर हो रही है तो इसमें जरूर कुछ मसलियत है, आज नहीं तो कल मुराद जरूर मिलेगी। खैर ये कुछ अहम बातें थी जो करनी जरूरी थी। अब हम रोजी में बरकत का वजीफा बताते हैं जो बहुत आसान है और हर शख्स इस पर अमल कर सकता है। और कुरान की छोटी सूरह है जिसको हमें पढ़ना है। इसमें हमें 4 काम करने हैं। हर फर्ज नमाज के बाद इसे पढ़ना है। एक बार दुरूद शरीफ, 7 बार सूरह कुरैश 30वें पारे में सिर्फ 2 लाइन की छोटी सी सूरह है। जब आखिर की 2 आयतों पर पहुँचे तब अपनी परेशानी का ख्याल करे कि या अल्लाह मेरी रोजी का मसला है या मुझे खुला परेशानी है। फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। बस इतना हर फर्ज नमाज के बाद कर ले, इंशाअल्लाह आप बरकत से जरूर माला माल होंगे, क्योंकि इस वजीफे के करने वालों को अल्लाह ने खूब नवाजा है। बस पूरे यकीन के साथ आप करते रहिए। अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान फरमाए, आमीन। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की आजमाइश। हजरत मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक शरीफ घराने में पैदा हुई। कुरान में 12 जगह उनका नाम आया है और उनके नाम से एक मुकम्मल सूरह अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है। उनके वालिद हजरत इमरान बैतुल मुकद्दस के इमाम थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बचपन से ही बड़ी नेक सीरत थी। अल्लाह ताला ने उस वक्त की तमाम औरतों पर उन्हें फजीलत अता फरमाई थी। पैदाइश के बाद उनकी वालिदा ने अपनी मन्नत के मुताबिक उनके खास हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की कफालत में बैतुल मुकद्दस की इबादत के लिए वक्फ कर दिया और ऊंची जगह पर एक कमरा उनकी इबादत के लिए खास कर दिया। वह हर वक्त इबादत और जिक्र इलाही में मसरूफ रहती। अल्लाह ताला ने गैबी तौर पर बगैर मौसम के उम्दा फलों के जरिए उनकी नसो नुमा और परवरिश फरमाई। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी हो गई तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए बशारत दी कि तुम्हें एक बेटा अता किया जाएगा जिसका नाम ईसा होगा। वह दुनिया व आखिरत में बुलंद मर्तबे वाला होगा और बचपन ही में लोगों से बात करके आपकी पाक दामनी की शहादत देगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत और कौम का हाल। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम के तकरीबन 100 साल बाद पैदा हुए। कुरान में उनका तज़किरा 8 जगहों पर आया है। अल्लाह ताला ने उन्हें कौम समूद की हिदायत व रहनुमाई के लिए भेजा था। उस कौम को अपनी शान व शौकत, इज्जत व बढ़ाई, फकर व गरूर और शिर्क व बूत परस्ती पर बड़ा नाज था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत करते हुए फरमाया, ए लोगो, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। वह इस पैगाम हक को सुनकर नफरत का इजहार करने लगे और हुज्जतबाजी करते हुए नबूवत की सच्चाई के लिए पहाड़ से हामिला ऊँटनी निकालने का मुतालबा करने लगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने मुआजिजे के तौर पर सख्त चट्टाने से ऊँटनी पैदा कर दी, मगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुआजिजा मिलने के बाद भी इस बदबख्त कौम ने नहीं माना और कुफर व नाफरमानी की इस हद तक पहुँच गई कि ऊँटनी को कत्ल कर डाला। और इसी पर बस नहीं किया बल्कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का भी मंसूबा बना लिया। इस जुर्म अजीम और जालिमाना फैसले पर गैरते इलाही जोश में आई और 3 दिन के बाद एक जोरदार चीख और जमीनी जलजले ने पूरी कौम को तबाह कर डाला। इसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों के साथ फलस्तीन हिजरत कर गए।
दुरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फायदे हैं। दुरूद शरीफ हर मुसीबत, हर बीमारी का इलाज है। इसको पढ़ने से आप कामयाबी की बुलंदी हासिल कर सकते हो। दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। दुरूद पढ़ने से दिल जिंदा हो जाता है। आज हम कुछ दुरूद शरीफ की फजीलत और फायदे के बारे में बात करेंगे, जिस पर अमल करके आप कई सारे फायदे हासिल कर सकते हो। कुछ अफजल दुरूद शरीफ और उसके फायदे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह दुरूद शरीफ कम से कम 100 मरतबा पढ़ने से दीन व दुनिया के हर काम में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नाकामी जैसे हालात दूर हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। यह दुरूद शरीफ हर जुमा की नमाज के बाद मदीना मुनव्वरा की जानिब मुँह करके 100 मरतबा पढ़ने से बेशुमार फजाइल व बरकत हासिल होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम। जो शख्स यह दुरूद शरीफ पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु वतरदा लहू। जो शख्स एक मर्तबा यह दुरूद शरीफ पढ़ता है तो 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसके नामे अमाल में नेकियां लिखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि बिकदरी हुस्निही व जमालिही। जो शख्स किसी मुसीबत या परेशानी में हो तो इस दुरूद शरीफ को 1000 मरतबा मोहब्बत व शौक से पढ़े। अल्लाह ताला उसकी मुसीबत टाल देगा और उसको अपनी मुराद में कामयाब कर देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअददी मा फी जमीइल कुरआनी हरफन हरफा व बिअददी कुल्ली हरफिन अल्फन अल्फन। 3 मरतबा सुबह शाम यह दुरूद शरीफ पढ़ने से जबरदस्त दीनी व दुनियावी कामयाबी मिलती है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यत ताहिरी। यह दुरूद शरीफ एक ही सांस में 11 मरतबा पढ़ने से मुंह में पैदा होने वाली बदबू दूर हो जाती है। सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मदु नूरम मिन नूरिल्लाह। कोई रंज व गम या मुसीबत आ जाए तो दिल से यह दुरूद शरीफ को पढ़ने से हर किस्म की मुसीबतें, तकलीफें और गम खत्म हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो क्या होता है? आज मैं आपको कुरान, हदीस और कुछ किस्सों की रोशनी में दुरूद शरीफ की फजीलत बताऊंगा। कुरान का हुक्म, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। सोचिए, जब अल्लाह और फरिश्ते खुद दुरूद भेज रहे हैं तो अगर हम पढ़े तो हमारे लिए कितनी रहमतें होगी। हदीस की बातें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। क़यामत के दिन सबसे करीब वही होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ेगा। दुआ रुकी रहती है जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ा जाए। सहाबा का सवाल। एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपनी दुआओं का ज्यादा हिस्सा दुरूद पढ़ने में लगा दूं तो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फिर तुम्हारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। एक बुजुर्ग का वाक़या। एक बुजुर्ग हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। लोगों ने पूछा, आप इतना दुरूद क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि जब भी मैं दुरूद पढ़ता हूँ मेरा दिल हल्का हो जाता है, गम दूर हो जाते हैं और रूह को सुकून मिलता है। दुरूद शरीफ के फायदे। दुरूद शरीफ से दिलों की सख्ती दूर होती है, दुआ कबूल होने की राह आसान होती है, घर से गम और परेशानियां दूर होती हैं। रिश्ते दुरूद पढ़ने वालों के लिए दुआ करते हैं। क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब वही होगा जो सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ेगा। खासकर जुमे के दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़े। कोशिश करें कि रोज कम से कम 100 बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़े। अगर आप अपने दिल की दुआओं को पूरा करना चाहते हैं, परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं या रिज्क में बरकत चाहते हैं तो दुरूद शरीफ का वजीफा बहुत असरदार है। वजीफा करने का तरीका। सबसे पहले वुजू कर ले, 2 रकात नमाज नफल अदा करे, फिर 100 बार सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम पढ़े। फिर अपने दिल की दुआ अल्लाह से करे। हदीस में आता है कि दुरूद शरीफ दुआओं को अल्लाह के दरबार में पहुंचाने का जरिया है, यानी पहले दुरूद फिर दुआ और आखिर में फिर दुरूद, तो वो दुआ कभी खाली नहीं लौटती। इस वजीफा के फायदे। परेशानियों से निजात, रिज्क और बरकत में इजाफा, गम और तकलीफ से राहत, कब्र की तंगी से नजात, आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होना। दोस्तों, दुरूद शरीफ का वजीफा सिर्फ दुनियावी मसाइल हल करने का जरिया नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी भी दिला
लाता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने दिन और रात को दुरूद शरीफ की खुशबू से महकाएं। अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ की बरकतों से नवाजे, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और आखिरत में हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब करे, आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कोई शख्स सिर्फ 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसे कितने बड़े इनाम और बरकत अता करता है। नंबर 1, दुआ कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुरूद शरीफ पढ़ो, इससे तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंचती है और कबूल होती है। नंबर 2, गुनाह माफ होते हैं। हदीस में आता है कि जो दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है और नेकियां लिखता है। नंबर 3, रिज्क में बरकत। जो शख्स रोजाना दुरूद शरीफ की आदत डाल ले उसके घर में और माल में बरकत पैदा होती है। नंबर 4, कब्र की रोशनी। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की कब्र रोशन होती है और अजाब से हिफाजत मिलती है। नंबर 5, कयामत के दिन शफाअत। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला होगा। नंबर 6, रहमतें नाजिल होती है। हर बार दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह 10 रहमतें नाजिल करता है, यानी 100 बार पढ़ने पर 1000 रहमतें। नंबर 7, फरिश्तों की दुआ। फरिश्ते उस इंसान के लिए दुआ करते हैं जो दुरूद शरीफ की तिलावत करता है। नंबर 8, दिल को सुकून। दुरूद शरीफ इंसान के दिल से बेचैनी दूर करता है और रूह को सुकून देता है। दोस्तों, देखा आपने सिर्फ 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ने से कितने बड़े बड़े फायदे हासिल होते हैं। तो आइए आज से ही हम रोजाना कम से कम 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल ले। दोस्तों, दुरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को बदलने वाली दवा है। आइए आज से ही इसे अपनी आदत बना ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सूरह अल कारिया की फजीलत और इसके अद्भुत फायदे जानेंगे। अल कारिया का मतलब है बड़ी टक्कर देने वाली, जोर की दस्तक, यानी क़यामत का दिन। सूरह अल कारिया कुरान में 101 नंबर सूरह है जिसमें 11 आयतें हैं। वैसे तो ये एक छोटी सी सूरह है, लेकिन अगर हम इसका तर्जुमा देखें तो पता चलेगा कि इसमें क़यामत का मंजर पेश किया गया है और बताया गया है कि उस दिन इस दुनिया के साथ और इंसानों के साथ क्या मामला होगा, जिससे इसके पढ़ने वालों को नसीहत हासिल होती है और आखिरत की तैयारी की फिक्र पैदा होती है। और जहाँ तक बात है कि इसके दुनियावी फायदे, तो वो भी बेशुमार है। सूरह अल कारिया की फजीलत और फायदे। नंबर 1, क़यामत की याद। इस सूरह की तिलावत से दिल में आखिरत का खौफ पैदा होता है। इंसान अपने अमाल सुधारने की कोशिश करता है। नंबर 2, हिसाब किताब की तैयारी। सूरह अल कारिया याद दिलाती है कि हर नेक और बुरा अमल तोला जाएगा। तिलावत से गुनाहों से तौबा की प्रेरणा मिलती है। नंबर 3, दिल को सुकून और ईमान की मजबूती। बार बार पढ़ने से दिल को दुनिया की मोहब्बत से हटाकर अल्लाह की याद की तरफ खींचती है। नंबर 4, घर में बरकत। हदीसों में सीधे तौर पर बरकत का जिक्र नहीं, लेकिन कुरान की हर सूरह की तिलावत घर में रहमत लाती है। नंबर 5, मुसीबत में राहत। उलमा के अनुसार जो शख्स परेशान हो वह इसे सुबह शाम पढ़े तो अल्लाह उसे सुकून अता करता है। सूरह अल कारिया के 3 जबरदस्त फायदे। नंबर 1, घर में अगर तकलीफ देने वाले जानवर पैदा हो जाए। अगर घर में तकलीफ देने वाले जानवर जैसे कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू और कॉकरोच पैदा हो जाए तो एक प्याला ले और उसमें पानी डाले, फिर नमक मिक्स कर दे। उसके बाद शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ के साथ सूरह अल कारिया को 11 बार पढ़कर उसमें फूंक दे और फिर घर के कोनों में छिड़क दे और खेत में उगी फसलों में छिड़क दे तो इंशाअल्लाह कीड़ा नहीं लगेगा। नंबर 2, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने के लिए। घर में मियाँ बीवी लड़ते और झगड़ते हैं और हाल ये है कि अच्छी खासी जिंदगी गुजर गई, बच्चे बड़े हो गए, तलाक हो नहीं सकती, बस इसी तरह सब्र करना है। तो अब अगर इनमें मोहब्बत और उल्फत पैदा करना चाहते हैं तो इसके लिए इस सूरह में बड़ा असर है। बस आपको करना यह है कि इस सूरह को 107 बार पढ़े, फिर खाने पीने की चीजों पर दम करके दोनों मियाँ बीवी को खिला दे। अगर नहीं खिला सकते तो पानी पर दम करके पौधों पर डाले और उनकी मोहब्बत की दुआ कर ले। बस एक ही बार के अमल से इंशाअल्लाह उनके अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस वजीफे को 2 या 3 लोग मिलकर भी कर सकते हैं। नंबर 3, कोई मामला अटका हुआ है या कोई जरूरत पेश हो। अगर कोई मामला अटका हुआ
हुआ है, हल नहीं हो रहा है या कोई जरूरत पेश है तो रोजाना मगरिब के बाद बैठकर इस सूरत को 41 बार पढ़े, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़े और 41 दिन तक ये अमल करता रहे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उस मुश्किल से अल्लाह ताला निकाल देंगे। पढ़ने का तरीका, वुजू के साथ कुरान की तिलावत करें। बेहतर है कि आप इसे हर नमाज के बाद या कम से कम रोजाना एक बार पढ़े, तर्जुमा भी समझे ताकि दिल पर असर पड़े। दोस्तों, इस सूरह को सिर्फ पढ़ना नहीं, इसके पैगाम पर अमल करना जरूरी है। नेक कामों का वजन बढ़ाने के लिए नमाज, रोजा, ज़कात, सदका और अच्छे अखलाक अपनाएं। दोस्तों, सूरह अल कारिया हमें आखिरत की याद दिलाती है। आइए आज से ही हम अपने अमाल सुधारें और रोजाना इसकी तिलावत को आदत बनाएं। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।